Bismillahirrahmanirrahim, and we are going to start the new batch for PTE. And today's agenda is the introduction of the PTE exam overall, what PTE actually is. So मैं एक पेपर पर इसको साथ साथ लिखता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और फिर आप लोगों को इसको रिकॉल करने में भी आसानी हो। एंड जब आप इसको रिकॉल करने लगते हैं या जब आपको समझने में आसानी होगी और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपके पास पहुंच जाएगा, तो थिंग्स विल गेट वेरी इजी फॉर यू एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू गेट द गुड बैंड इन योर ओवरऑल पीटी एग्जाम। तो हम एक एक चीज को लिखते हैं और एक एक चीज को जिसको हम लिखते जाएंगे उसको हम साथ साथ समझते भी चले जाएंगे। So now, here it is about the PTE. So I'm going to write everything in front of you all. So now, PTE Pearson Test of English. It is an exam of about 2 hours. It is an exam of 2 hours. About 2 hours, say 2 hours and 15 minutes. It is an exam of 2 hours and 15 minutes. And this exam of 2 hours and 15 minutes is in the single sitting. It is a single sitting exam. Pearson Test of English, PTE, is an exam of 2 hours, 15 minutes almost, and it is an exam of single sitting, number one. Number two, the PTE have 4 exam sections. 4 exam sections are there. So PTE has 4 exam sections. यानी कि overall Pearson Test of English PTE के अंदर कितने exams होंगे total? 4 exams will be there. The name of the first exam the students will sit into is known as your speaking exam. The second exam is known as the first exam is the speaking exam. I'm going to tag it here for you. And the second exam of PTE will be the writing exam. The third exam of PTE will be the reading exam, and the fourth exam will be the listening exam. Now we will push this thing up. We will push up the information one by one. We will keep adding the information on our paper one by one. So what we learned up till now. पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश क्या है? ये 2 घंटे 15 मिनट का एक सिंगल सिटिंग का एग्जाम है और इन सिंगल सिटिंग के एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं. नंबर 1 is the speaking section, number 2 is the writing section, number 3 is the reading section, and number 4 is the listening section. Is it clear so far? So now, if it is clear, we go to the speaking section. Every specific exam of every specific section of PTE is of 90 marks. So I'm going to write number 1, speaking exam. How many marks are there? Speaking contains 90 marks. So if we talk about writing, again, I'm saying all exam of 90 marks. So writing marks are 90. अगर सारे exam जो हैं वो 90 marks के हैं तो reading के भी कितने marks होंगे? 90. अगर सारे exam 90 marks के हैं तो listening will be of 90 marks as well. So if all 4 exam, reading, writing, listening, speaking, they all are of 90, 90, 90 and 90, तो फिर PTE के कुल कितने number होंगे? So it's a 2 hours, 15 minutes exam with 360 marks in total. Is it clear or not? So PTE is an exam of 2 hours and 15 minutes almost, and there are 4 sections of the exam. Number 1 is speaking, number 4 writing, number 3 reading, number 4 is listening. Are 4 sections of 90, 90, 90 and 90 marks, and in this way, the total marks of PTE will be 360 for all 4 sections of PTE. I believe yahan tak clear hoga. If somebody is having any question, you can ask me the question and I will be answering. So now, if we talk about the speaking exam, this exam of 90 marks has total 5 questions. Speaking ke kitne sawal ho gaye? 5 questions. How many? 5 questions. So now, अगर मैं बात करता हूँ राइटिंग एग्जाम के, तो राइटिंग एग्जाम कंटेन्स ओनली 2 क्वेश्चंस. सो नाउ अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग एग्जाम की, तो रीडिंग एग्जाम कंटेन्स 5 क्वेश्चंस. एंड if we talk about the listening exam contains 8 questions in total.
So if I talk about speaking exam, 5 सवाल. We talk about reading exam, 5 सवाल. We talk about writing exam, 2 सवाल. We talk about the listening exam, there are 8 questions. So अगर इन सब questions को जमा कर लेता हूँ, तो overall in PTE there are 20 questions. So now there are 20 questions. So now I'm restarting that. Pearson Test of English PTE is an exam of about तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का एक सिंगल सिटिंग का एग्जाम है, जिसमें 360 टोटल नंबर है और कितने क्वेश्चन है टोटल 20. Okay, so how many sections are there? Reading, writing, listening, speaking. 90 90 90 और 90. आपके स्पीकिंग में एग्जाम में कितने नंबर हैं? स्पीकिंग के सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं, 90 नंबर हैं. राइटिंग में 2 क्वेश्चंस हैं, रीडिंग में फिर 5 हैं और लिसनिंग में कितने क्वेश्चन हो गए? 8 in total. Is it clear? Okay, so move ahead. These speaking 5 questions contribute, ये speaking के 5 सवाल contribute all 90 marks to speaking exam, to speaking exam. ये जो 5 सवाल हैं स्पीकिंग के, ये स्पीकिंग को पूरे 90 मार्क्स देते हैं. व्हाट आई मीन टू से, आपके हर सवाल या हर सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो उस सेक्शन के 90 पूरे करें पीटीई में, ये जरूरी नहीं है. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द राइटिंग एग्जाम, राइटिंग के टोटल 2 क्वेश्चंस हैं. ये 2 सवाल जो राइटिंग के हैं ये टोटल 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग में आउट ऑफ 90. इसका मतलब है कि राइटिंग के 60 मार्क्स कहीं और से आ रहे हैं. वो कहां से आ रहे हैं वो अगर हमें नहीं पता तो हम पीटी में कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते. इज इट क्लियर? सो ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ the speaking exam contribute how many marks? 90 marks to your speaking exam. Adding to it, these 5 questions contribute nearly takriban 60 marks to other sections, यानी कि ये 5 सवाल सिर्फ 90 मार्क्स स्पीकिंग को खुद को नहीं दे रहे, बल्कि तकरीबन 60 के करीब मार्क्स बाकी सेक्शंस को भी दे रहे हैं. फॉर एन एग्जांपल, बाकी सेक्शन से क्या मुराद है? लिसनिंग. बाकी सेक्शन से क्या मुराद है? रीडिंग. अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं लिसनिंग एंड रीडिंग. तो व्हाट आई मीन टू से, आपके जो स्पीकिंग के 5 क्वेश्चंस हैं वो स्पीकिंग को तो 90 मार्क्स दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट आपके ये 5 क्वेश्चंस आपके लिसनिंग और रीडिंग को भी 60 मार्क्स ऐड कर रहे हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आगे चलिएगा. सो नाउ राइटिंग मार्क्स आर टोटल. राइटिंग हैज 2 क्वेश्चंस और ये 2 सवाल जो राइटिंग के हैं ये टोटल 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइटिंग एग्जाम में. टोटल 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइटिंग एग्जाम में और 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. These 2 questions are contributing 10 marks. 10 more marks these are contributing to reading exam. ये reading exam में almost 10 marks contribute करते हैं. So 2 questions are contributing to 30 marks to its own section of writing. ये 2 सवाल writing के अपने section को contribute कर रहे हैं total 30 marks और 10 marks से contribute कर रहे हैं reading exam को. Okay, so now talk about the reading exam. So reading has 5 questions in total. अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके अगर राइटिंग के एग्जाम में फॉर एन एग्जांपल यहां पे टोटल मार्क्स आपके बन गए 30 एंड 40, तो 90 कैसे पूरे होंगे? ये तो 40 मार्क्स हैं, तो 90 कैसे पूरे होंगे? मैं इस पे बात करूंगा. मैं एक स्टेप में बात आगे लेके चल रहा हूं. पहले मैंने बात की पीटीई क्या है, फिर मैंने बात की उस पर टाइम क्या है, फिर मैंने बात की सेक्शन कितने हैं, फिर मैंने बात की हर सेक्शन के नंबर कितने हैं, फिर मैंने बात की टोटल पीटीई के नंबर कितने हैं. देन मैंने बताया कि टोटल हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है और फिर मैंने बताया कि टोटल पीटीई के कितने क्वेश्चन है. तो मैं एक स्टेप में आगे चल रहा हूं ताकि आप लोगों के सामने एक ऐसी समरी बने जो आपको कभी भूले ना. एक बात याद रखिएगा, मोर स्ट्रॉन्गर यू विल बी इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग, मोर स्ट्रॉन्गर यू विल बी इन योर परफॉर्मेंस. आप जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे और जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे उतना ही बेहतर फिर हमारा स्कोर आएगा, जिसको आईएलटीएस में बैंड कहते हैं और पीटीई में उसको स्कोर कहते हैं. इज इट फाइन जी? सो नाउ मूव अहेड. सो मुझे पता है कि वो 90 नहीं बना रहे. मैं इनको 90 कैसे बनते हैं मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद इस पर बात कर चुका हूँगा. सो नाउ मूव अहेड. सो नाउ 5 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग एग्जाम. These give almost 45 marks to reading.
ये 5 सवाल रीडिंग के जो हैं, ये जो 5 मार्क्स हैं रीडिंग के, 5 क्वेश्चन रीडिंग एग्जाम के, दीज 5 क्वेश्चंस ओनली कंट्रीब्यूट 40 मार्क्स, 45 मार्क्स टू द रीडिंग एग्जाम. इज इट क्लियर नॉट? इज इट क्लियर? सो नाउ पहले मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन. मैंने लिखा है कि स्पीकिंग एग्जाम के अपने 5 क्वेश्चंस के 90 मार्क्स जा रहे हैं स्पीकिंग को, और ये कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं? 62 अदर सेक्शंस. मैं कह रहा हूं कि आपके राइटिंग के 2 क्वेश्चन से कितने मार्क्स हैं? 30 अपने सेक्शन के लिए, कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं? तकरीबन 10 मार्क्स. मैं लिख रहा हूं कि रीडिंग के 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स दे रहा है? रीडिंग को 45 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कितने वो मैं नीचे लिखूंगा. उसके बाद जो इन सेक्शंस की कमी है 90 में, वो कहां से पूरी हो रही है, मैं उसके बाद उस पर भी बात करूं. क्लियर? सो नाउ 5 questions of reading exam are giving 45 marks to your reading exam, and these 5 questions are contributing 22 marks to writing. ये 5 questions contribute कर रहे हैं 22 marks contributions contribute. So these are contributing 22 marks to your writing exam. Clear? So now come on listening. So if you talk about the listening exam, so listening exam के अपने 8 questions of listening. 8 questions of listening overall, they are contributing about 55 to 56 marks. 55 to 56 marks they are contributing to the listening exam. Marks to listening. ये 8 के 8 सवाल कितने नंबर दे रहे हैं लिसनिंग एग्जाम को? These are giving only 55 marks. And these questions जो लिसनिंग के हैं, these questions are giving about 10 marks to writing. 10 marks to writing. यही सवाल जो हैं, जो 8 सवाल लिसनिंग के हैं, लिसनिंग को 55 मार्क्स दे रहे हैं. लिसनिंग को 55 मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 10 मार्क्स किसको दे रहे हैं? ये 10 मार्क्स दे रहे हैं ये लिसनिंग एग्जाम को. मेरी बात समझ में आती है? Is it clear? 10 marks, sorry, ये दे रहे हैं reading exam. 10 marks they are giving to reading exam, and almost 10 marks they are giving to 10 marks they are giving to the writing exam as well. 10 marks to writing on the one hand, and then another question is also contributing 10 marks, and then another question is contributing about 20 marks. So overall, if I gather these marks, listening is contributing at about 40 marks to the writing exam. To be very exact, almost 40 marks are contributing to the writing, and nearly 40. तो ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो लिसनिंग को दे रहे हैं 55, रीडिंग को दे रहे हैं 10, और 40 मार्क्स दे रहे हैं किसको? आपके राइटिंग एग्जाम. इज इट फाइन जी? सो नाउ आई कम बैक ऑन इट अगेन. So now come back on the speaking exam. What I told you, speaking क्या कर रहे हैं? Speaking क्या कर रहा है? Speaking कर ये रहा है, नंबर 1, टोटल स्पीकिंग में there are 90 मार्क्स, 5 क्वेश्चन. ये 5 क्वेश्चन अपने पोर्शन को पूरे 90 मार्क्स दे रहे हैं. Along with this, ये तकरीबन 60 मार्क्स बाकी पोर्शंस को भी दे रहे हैं. I mean, speaking is giving almost 60 marks to reading and the listening exam as well. Clear? खुद किसी से नंबर नहीं ले रहा, खुद किसी से नंबर नहीं ले रहा, बल्कि बाकी पोर्शंस को भी 60 नंबर दे रहा है. हम बात करते हैं राइटिंग की. राइटिंग के 90 मार्क्स हैं, 2 सवाल हैं. अपने 2 सवाल सिर्फ 30 मार्क्स दे रहे हैं राइटिंग को, और ये राइटिंग के 2 सवाल 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रीडिंग एग्जाम में. ऑलमोस्ट रीडिंग पे आई है. सो नाउ इफ आई गो अबाउट द रीडिंग, तो टॉक अबाउट द रीडिंग एग्जाम में टोटल देयर आर 5 क्वेश्चंस, और ये जो 5 सवाल हैं रीडिंग के, इनके टोटल नंबर है 90. ये 90 मार्क्स जो है टोटल इसके रीडिंग के. 5 क्वेश्चंस रीडिंग को दे रहे हैं 45 मार्क्स, एंड 22 मार्क्स नियरली ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको? ये नियरली 22 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको? आपके राइटिंग एग्जाम को. इज इट फाइन जी? सो लेट्स वी टॉक अबाउट द लिसनिंग एग्जाम. टोटल 98 क्वेश्चंस हैं. 8 सवाल मिलके अपने लिसनिंग के सेक्शन को कितने मार्क्स दे रहे हैं? 55, 56. 10 मार्क्स दे रहे हैं ये रीडिंग एग्जाम को, और तकरीबन 40 मार्क्स दे रहे हैं ये आपके 40 मार्क्स दे रहे हैं आपके राइटिंग एग्जाम को. इज इट फाइन? सो मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कि दिस कैन बी अ बिट 5% कम या ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकती है दूसरे सेक्शंस में. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो नंबर कम है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग के 5 सवालों ने अपने पूरे सेक्शन को 90 मार्क्स दे दिए. इसको तो किसी और पोर्शन से कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर हम बात करते हैं राइटिंग एग्जाम की,
अगर हम बात करते हैं राइटिंग एग्जाम की, तो राइटिंग एग्जाम के टोटल 90 मार्क्स जो हैं वो कैसे पूरे होंगे? यहां पे तो इट्स ऑलमोस्ट 30, दीज आर ऑलमोस्ट 30 मार्क्स, तो बाकी कैसे पूरे होंगे? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नाउ वर्क ऑन कि हम कैसे बैलेंस करेंगे मार्क्स को. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग एग्जाम ने तो 90 मार्क्स अपने 5 क्वेश्चन से ले लिए, मगर राइटिंग एग्जाम ने अपने 2 क्वेश्चन से सिर्फ 30 मार्क्स लिए हैं. तो येट वी आर वर्किंग ऑन अ डेफिशिएंसी ऑफ 60 मार्क्स इन राइटिंग एग्जाम. हम इन राइटिंग के 60 मार्क्स को कहां से लेंगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ यहां पे मैं अब लिख रहा हूं आगे फर्दर डेफिसिट कंट्रीब्यूशन. डेफिसिट कंट्रीब्यूशन, जो डेफिसिट है ये कहां से आएगा? डेफिसिट कंट्रीब्यूशन इन टोटल, डेफिसिट कंट्रीब्यूशन इन टोटल, जो नंबर कम है अब 90 से, वो कहां से आएंगे? तो राइटिंग गेट मार्क्स फ्रॉम रीडिंग क्वेश्चन. रीडिंग क्वेश्चन deficit are covered by number 1 reading section, number 2 it is covered by the listening section. It is covered by the listening section. If we talk about the reading section, if we talk about the reading section, the reading almost give this specific writing exam about 22 to 25 marks. So we on an average work on, for an example, 20 marks. Okay, so if we talk about 20 marks are coming from this one. If we talk about or 20 and we talk about around 36 to 40 marks are being contributed by in the writing or contributed by the listening section. So अब अगर आप writing के 90 marks बनाएंगे तो कैसे बन रहे हैं? About 30 marks from the 2 questions of writing itself, plus 20 marks are being contributed by the reading exam, and almost 40 marks are being contributed by the listening exam. All together these three make how many? 9. Is it clear? So इसलिए पीटीई में इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. अगर आपने राइटिंग सेक्शन में हायर बैंड लेना है तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि 2 सवाल राइटिंग के तैयार करने, बट एक्चुअली वी हैव टू सी दैट कौन कौन सा क्वेश्चन राइटिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा है. अगर आपने उन सवालों को तैयार नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करेंगे, तो आपके राइटिंग में एग्जाम में कभी भी स्कोर ऊपर नहीं जाएगा. 2 क्वेश्चंस को करके आप राइटिंग में कोई वंडर प्ले करने नहीं जा रहे हैं. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. और मैं इसीलिए लिख भी रहा हूं. अब ये जो क्वेश्चंस है वो कौन से हैं? रीडिंग के एग्जाम की हम बात करें तो रीडिंग के एग्जाम में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इन मार्क्स में, दैट इज नोन एज रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. Reading, writing, fill in the blanks is the major contributor of the marks to the writing section. Is it clear जी? अब नीचे चलिए. अब हम बात करते हैं we talk about the listening section. What are the questions which are contributing to the writing exam? So listening में the major contributing questions are SST, summarize the spoken text, and then number 2 it is the fill in blanks, and that is number 3 it is the write from dictation. Okay, so these 3 questions are contributing the maximum score out of this 40. Why I'm writing this thing? So if you would be preparing your writing exam, अगर आपको writing exam को prepare करना है तो आपको पता है मैंने writing के 2 सवाल prepare नहीं करने. I have to prepare 2 questions of writing, 1 question of reading, 3 questions of listening. In this way, I will be able to take 90 out of 19 marks in your writing exam. Clear? इसका मतलब ये है कि the questions are not 2. Actually, these questions are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 questions are there that you people need to prepare for a good score in your writing exam. Is it clear? So we need to work on the 6 questions despite of 2. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीटीई के स्टूडेंट्स को कि उनको एक स्पेसिफिक सेक्शन के बैंड एनहांसमेंट का पता नहीं होता. आगे चलिए. रीडिंग एग्जाम 5 questions are contributing 45 marks to the reading exam. So where the rest 45 marks will come? The deficit contribution. Deficit contribution. बाकी कौन से क्वेश्चन है, कहां से नंबर आएंगे? The deficit contribution is from your reading exam. It is from speaking.
it is from speaking. And the second contribution in your reading exam that come from writing. Okay, so it's come from the writing section, the speaking section, and number two is the writing section. Is it clear? Writing section. And number three is the listening section. तीनों से contribution आ रही है. So now, what is the writing section contribution? The speaking section contribution. The speaking question, read aloud is going to give about, it is going to give about 20 marks to your reading section. The writing exam and its question that is naming as SWT, summarize the written text. This question is going to give 10 marks to your reading exam. And then the listening question, it is highlight the incorrect word. It is going to contribute about 10 marks to your reading exam. And in this way, we are about to cover the total 90 marks. And I think MCQs are contributing a small portion, for an example, 2 marks or 3 marks and something like that. So it makes overall sum of the 90 marks total. That means that अगर किसी को reading exam में number चाहिए, so he has to work on 5 questions of reading itself, plus 1 question of speaking, plus 1 question of reading, writing, plus 1 question of listening. Means total 8 questions are required to be prepared for 90 band of, or the 90 score of your reading exam. So reading के 5 सवाल तैयार करने से कोई वंडर प्ले नहीं होने वाला. अगर आपको रीडिंग के एग्जाम में नंबर लेने हैं तो आपको 8 सवाल तैयार करने होंगे. 5 रीडिंग के अपने, प्लस 1 स्पीकिंग का, 1 राइटिंग का, 1 लिसनिंग का, तो आप अपने बैंड को ऊपर या स्कोर को ऊपर लेके आ सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. फाइनली कम ऑन द लिसनिंग एग्जाम. ये लिसनिंग के जो एग्जाम है, ये लिसनिंग के अपने 8 क्वेश्चन अपने स्पेसिफिक सेक्शन के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट इज ओनली ऑफ 55 मार्क्स. सो जो लिसनिंग है, इट इज शॉर्ट ऑफ, लिसनिंग इज शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 35 मार्क्स जो कि इसको पूरा करना है. अब लिसनिंग जो है उसको स्पीकिंग जो है, लिसनिंग को द स्पीकिंग एग्जाम डेफिसिट कंट्रीब्यूशन. So now the deficit contribution will be from, अब the total number कम है 35, that contribution is coming from where? This specific contribution of deficit is coming from speaking section. Speaking section is going to contribute, speaking exam or the speaking section is going to contribute these 35 marks. And these 35 marks are coming from 3 questions. The first question is retell lecture. Retell lecture is 1 question. And the second question that is going to contribute the marks to your overall, second question that is going to contribute the marks now for this specific listening exam. And that question is RS, repeat the sentence, and it is the highest marks question. Repeat the sentence. And this is the highest marks question of the whole PTE. And the third question that is going to contribute towards the listening exam, it is known as answer the short question. तो ये जो 3 सवाल हैं, answer the short question. ये जो 3 सवाल हैं, these are going to contribute 35 marks to your listening exam. इसका मतलब क्या हो गया? Retell the lecture तकरीबन बेटे 10 marks contribute कर रहा है. आपका जो RS है, ये तकरीबन 20 marks contribute कर रहा है. और तकरीबन answer the short questions 5 marks contribute कर रहे हैं in total. And in this way, we have concluded the overall. PTE exams overall.
आई एम सेविंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू पीपल, और इसको मैं नीचे डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से टोटल आपके पीटीई के सेक्शंस और उनके मार्क्स, कंट्रीब्यूशंस टू अदर सेक्शंस, देयर ओन टोटल मार्क्स एंड देयर डेफिसिट मार्किंग वो कैसे हो रही है, मैंने आपके सामने लिखा है। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा मार्क्स के ग्रिड के ऊपर। So now the first thing I told you people, it is what, इसको एक तरह ध्यान से देखिएगा। PTE PSN test of English, how many hours? 2 hours 15 minutes. How many marks are there? 360 marks are there. And then there are total 20 questions that we have to work on, and there is a single sitting in exam. There are 4 sections of exam. Number 1 is the speaking exam, and number 2 is the writing exam. Number 2 is the writing exam. Number 3 is the reading exam, and number 4 is your listening exam. If we talk about the exam of speaking, there are total 5 questions. If we talk about writing, there are total 2 questions. If we talk about reading, there are total 5 questions. And if we talk about the listening exam, there are total 8 questions. If we talk about total section-wise questions, writing 2, speaking 5, reading 5, and listening 8, total 20 questions are in aggregate for the whole PTE exam. So these 5 questions of speaking, they contribute almost 90 marks to their own section. So speaking के कितने नंबर होंगे? 90, सारे के सारे मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? उसके अपने 5 सवालों से। राइटिंग के नंबर भी हैं 90, अपने 2 सवालों से आ रहे हैं 30 मार्क्स, और तकरीबन 60 मार्क्स उसको रीडिंग और लिसनिंग के सेक्शंस दे रहे हैं। रीडिंग में टोटल मार्क्स है 90, अपने 5 सवाल दे रहे हैं तकरीबन 45, और 45 मार्क्स उसको दे रहे हैं रीडिंग को, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग के 8 सवाल हैं, 85 मार्क्स है। 55 मार्क्स अपने 8 सवाल दे रहे हैं, और तकरीबन 35 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका स्पीकिंग सेक्शन लिसनिंग को। सो नाउ ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें लिसनिंग के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अभी बात शुरू भी नहीं हुई है। एक्चुअली द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अंडरस्टूड, व्हाट वी नीड टू इज दैट आपके इस ग्रिड को अगर हम देखें, तो दिस ग्रिड दैट इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, इस ग्रिड को देखने के बाद हम अंदाजा लगाएंगे कि एक्चुअली पीटीई है क्या। पीटीई में यहाँ आई हैव गिवन द डिटेल ऑफ द होल 360 मार्क्स, 360 नंबरों की डिटेल है। इन 360 नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस, दीज 4 क्वेश्चन, अब छोड़ दें इसको कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से है, मैं समझा रहा हूं सिर्फ, अभी मैं सेक्शन वाइज डिटेल बयान करूं। अब मैंने क्वेश्चंस के नाम नहीं लिखे, अभी मैंने क्वेश्चंस के नाम नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ ये बताया कि टोटल क्वेश्चंस हैं कितने पर सेक्शन। लेकिन अगर मैं इन क्वेश्चंस को जो मैंने टोटल लिखे हैं हर सेक्शन के, और मैंने टोटल 360 मार्क्स लिखे हैं पीटीई में, याद रखिएगा ये 4 क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं रिपीट सेंटेंस एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड, अगर मैं इन 4 क्वेश्चंस को देखूं तो दीज आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 200 नंबर्स आउट ऑफ 360। सिर्फ 4 सवाल 360 नंबर के करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके 360 में। सिर्फ 4 क्वेश्चंस आर कंट्रीब्यूटिंग 200 marks out of 360. इसका मतलब है कि if somebody has a complete grip upon these 4 questions, he can really play outstandingly and he can really demonstrate the exam with very good score of more than 70, अगर इन 4 सवालों में उसकी अच्छी ग्रिप है तो। अगर मैं थोड़ा और आगे चला जाऊं, मैं इनमें सिर्फ 7 क्वेश्चंस और ऐड कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नाउ दीज आर टोटल 11 क्वेश्चंस, और ये 11 क्वेश्चंस जो बन जाएंगे यहाँ पे पहले 4 के साथ, these are contributing about 340 marks out of 360, about और 330 marks out of 330 marks out of the total of 360। तो अगर मैं 11 क्वेश्चंस की बात करूं जो आपके सामने मैंने ग्रिड पे रखे हुए हैं, तो 330 नंबर 360 में से ये 11 सवाल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट फर्दर मोर, इसमें मैं 3 सवाल और ऐड कर दूं, अब कितने क्वेश्चन हो गए? 14, एंड दीज 14 क्वेश्चंस आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 350 नंबर्स आउट ऑफ 360। सो व्हाट आई मीन टू से, पीटीई को दिमाग से करना होगा, दिल से नहीं। अगर आप पीटी में सिर्फ 4 सवालों पे ग्रिप है तो 200 नंबर सिक्योर हैं। अगर आपकी 11 सवालों पे ग्रिप है तो आपके 330 नंबर सिक्योर हैं। और अगर आपकी जो ग्रिप है वो 14 क्वेश्चंस पे स्ट्रांग है, तो दैट मींस आपकी 350 नंबर पे ग्रिप है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पीटीई इमोशन से नहीं होगा, पीटीई विल बी विद
द माइंडसेट। पीटीई विल बी योर माइंडसेट। पीटीई होगा आपके दिमाग के साथ, आपकी दिमाग की अप्रोच के साथ। पीटीई को अगर आप दिमाग से सोच के करेंगे तो दिस विल बी अ बेस्ट टेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम स्कोर फॉर योर फ्यूचर। मगर अगर आप इसको इमोशनल होके करेंगे, अगर आप इसको करेंगे एक ऐसे बच्चे की तरह से जिसने सारे सवाल करने हैं विदाउट एनी टारगेट ओरिएंटेशन, आई एम रियली वेरी सॉरी, पीटी में स्कोर लेना विल नॉट बी एन इजी टास्क। सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इंडिविजुअल सेक्शंस, एंड इंडिविजुअल सेक्शंस पे जाके मैं बात करूंगा कि हर एक सेक्शन के अंदर इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं और उसको किस तरह से बाइफरकेट किया गया है।